I spent almost 3 lakhs for the bakery and I thought I'll double it up. But business is something like आप sure नहीं होते हो it will work or it will not work. So it got so difficult with the staff and they all wanted to go home also. जब हम इंडिया आते थे ना तो लोग बोलते थे लंदन से आए बट हमको ही पता हम लंदन में क्या कर रहे हैं. I had a scan. Doctor said to me that a baby is not a normal baby. You have a choice that you abort और यू कैन हैव अ टेस्ट. एम्बुलेंस तो आ जाएगी तुरंत, लेकिन वहाँ पे बिठा के वो सिर्फ ब्लड बंद करके बिठा देंगे 3-4 घंटे तक. दैट इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग, फॉर बिजनेस हो जाए, मेडिकल टर्म हो जाए, स्कूलिंग हो जाए, एवरीथिंग इज फेब. एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं यूके में 9 years रह के मैं इंडिया सेटल हुई. बट देन वो इनर फीलिंग जो होता है स्पेशली मदर्स को, इट ऑलवेज वर्क. तो वहाँ के लोगों को ना ऐसे अपने इंडियंस की बाल बहुत पसंद है. मुझे कॉल आया एंड दे सेड दैट आपकी बेबी को ना होल है हाथ में. आई वाज नेवर हैप्पी इन यूके. आई वाज डिप्रेस्ड. इतनी सब यूके में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी अपने कंट्री में से इतने सारे लोगों को जाके क्यों सेटल होना होता है वहाँ पे? You can get drugs any grocery shop में भी you will find drugs. Society don't need a proof for a girl. You know, मैंने suicide attempt करने की कोशिश की. And I told her, this my work. मैं इतना ही करूँगी. Even though people judge, try to ignore it. Ignorance is the best thing you can do. And keep that smile on your face. Let people think, why are you so happy? Welcome to the second episode of She Speaks. I am Dr. Soumya Nadkarni. Success is not measured by how much money you have or how much you earn. It is measured by how hard you work, how much quality things you do, and if you're able to sleep well at the end of the day. So today's guest is an embodiment of hard work, determination, grit, and she has overcome a lot of struggles in her life and come where she is. So let's go ahead with it. Welcome. I want you to tell us something about yourself. नमस्ते, मैं हूँ रोहिणी महेश. मैं इंडिया से हूँ और मैं दमन में रहती हूँ. आई एम अ मदर एंड आई एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर. मैं एक केक शॉप चलाती हूँ नानी दमन में. आई हैड 3 ब्रांचेस, 2 शट डाउन कर दिए. सो नाउ बेसिकली आई जस्ट हैव one which works wonderful. So can you tell us the name of your bakery? It's Heavenly Cakes Daman and it's an eggless bakery. Everything is eggless. The reason behind that is जो नॉनवेज खाते हैं वो एगलेस भी खाते, और जो एगलेस खाते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते. सो यू नो दे माइंड किचन. एक्चुअली जो प्योर वेज होता है उनके लिए स्पेशली किचन बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ दे सी एनी एग देयर they will not prefer that bakery or restaurant. So that is the only reason, and there is no much difference in egg cake and eggless cake. My mother is also a vegetarian और उनका भी ऐसे ही होता है कि इधर अंडे वाला खाना मिलता है या इधर नॉनवेज मिलता है तो हम इस रेस्टोरेंट में नहीं जाते. So that way she also prefers to go to a place which is completely eggless. So to that extent जहाँ लोग हमसे पूछते हैं कि हम जैन हैं क्या, ऐसा. So that way she also prefers eggless. Okay. तो जो आपकी बेकरी है, you have a bakery with cafe, right? Yes. So what was the idea behind making it with a cafe? जब मैंने स्टार्ट किया था चला में, द प्लेस विच आई गॉट वॉज क्वाइट बिग. मैं हूँ दमन से, लेकिन मैंने मेरा फर्स्ट बेकरी चला से स्टार्ट किया. द रीजन बिहाइंड दैट वॉज आई वॉज बिट नर्वस एंड आई डिडंट नो व्हाट बिजनेस इज. But I just wanted to come out of the house. I wanted to be in a room. Instead of that, I thought of opening a bakery. Bakery is something like, it's my favorite, cakes and chocolate. So I thought of spreading it, sweetness all around. So then Chala mein, when I saw the shop, it was, compared to small bakery, it was quite big. वो मेरा first था, तो I didn't know how to acquire that whole place. So I thought of opening a cafe. A cafe means coffee, waffles हो गया, sandwiches हो गया, like a tea time cafe types. So then wherever I have opened my new branches, it came up with
cakes and cafe, which turned out to be more profitable to me than just a bakery. So it was a good concept. Yes, basically. yes. और ऐसे फिर मजा आता है ना हाँ. कि साथ में केक्स है और फिर बैठ के आप खा पाओ. हाँ, yes, people can come and sit and eat. तो You can enjoy with your friends also. Yes, and then space ज़्यादा थी तो parties होती थी वहाँ पे, and it was a good concept then. So what kind of difficulties did you come across when you first started about with it? When I started my bakery, financially, I was very low. Though I belong to a very good family, my father and my parents were not supporting me during the period when I planned about bakery or any other business. I couldn't ask for financial help, first thing. I just had 4 lakhs in my account. But then that 4 lakhs was like I had to save it for whole of my life. I spent almost 3 lakhs for the bakery and I thought I'll double it up. But business is something like आप sure नहीं होते हो, it will work or it will not work. So it was a big risk for me. But then the Chala shop, it gave me a good profit. It worked very nice. In 3 months' time, I opened another bakery in Daman. It was quite profitable. It was quite profitable. And then COVID hit. जब आपने स्टार्ट किया था तो ओपनिंग अ बेकरी फॉर द फर्स्ट टाइम यू माइट नॉट हैव हैड दैट मच आइडिया कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या कहाँ से खरीदना है, चीज़ें कहाँ से लानी है, बेकरी का इक्विपमेंट. वन डे वन नाइट ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी एक दिन रात को 3-4 बजे, तो मैं ऐसे गूगल कर रही थी कि अगर इफ़ आई वांट टू बेक समथिंग व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड. तो फॉर मी बेकिंग इज लाइक अनदर लेवल. आई कैन कुक बट बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. तो हाउ डिड यू स्टार्ट इट? आप सामान कहाँ से लाए, आपने कैसे सोचा कि पैकेजिंग का क्या करना है, केक्स बनाएंगे तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? अबाउट दैट. One of my cousin's friend, he own a bakery. To start up a bakery, I just asked him, I want to start a bakery. But क्या होता है, business owner don't give ideas. But he said to me that हम पार्टनरशिप में करते हैं. And I was okay with it because मुझे कुछ ना कुछ तो करना था. That time only he told me all equipments और materials वगैरह, box वगैरह कहाँ से लाना है. Basic चीज़ें थी वो तो मुझे वहाँ से ही पता चल गई थी. लेकिन before starting my bakery मैं home baking करती थी at my in-laws. तो boxes वगैरह में मुझे पता था कि अपना मुंबई है प्रॉफिट मार्केट विच इज़ अ होलसेल मार्केट. तो मैं वहाँ से मुझे पता था. लेकिन फिर एक बिजनेस के लिए वी नीड मोर लो प्राइस फॉर बॉक्सेस एंड ऑल. सो वो मेरे फ्रेंड ने बताया. हिज नेम इज शेफ. तो उसने मुझे बताया. तो फिर तो धीरे धीरे वी गेट टू नो व्हेन वी डील विथ डीलर्स. और खुद से ही फिर सारे डीलर्स आते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट. क्रीम हो गया या दे वांट टू सेल अ प्रीमिक्स or chocolate. There is a different variety of chocolates. So then they come to us searching us. So वो difficulties तो नहीं हुई. Deliveries I give deliveries. If it is a huge cake and need to go a long way. So I personally go and give cakes. Otherwise I have staff who does that. आपने जैसे अभी आपका दमन में है, जो वापी टू दमन वाला ट्रैवल रूट हमारा था, फ्लाईओवर वो तोड़ दिया. तो अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, पूरा घूम के जाना पड़ता है, फाटक क्रॉस करके आना पड़ता है. सो आफ्टर दैट फ्लाईओवर ब्रेकेज आपको प्रॉब्लम्स हुए? एक्चुअली उसके बाद मैंने इफ इट इज more profitable then only I take orders. Otherwise I don't take orders to deliver the cake. The reason behind it is cake is very delicate. Though it is half kg or it is 5 kg. हमको वहाँ तक लेके जाना मतलब it is like a shell जैसा. तो डैमेज हो जाए that is the loss. So I prefer not to take orders. If it is Gunjan side or yes, if they most of the clients they travel to Daman for parties. Okay. So I get good clients from Vapi to Daman. शुरुआत में when you were thinking कि हम चालू कर रहे हैं, तब
आपने स्टार्ट किया तब आपको ऐसे होगा, टेंशन होगी कि कोई आएगा नहीं आएगा, अब लोग आपको ढूंढ के आते हैं. हाँ हाँ, तब तो नींद ही नहीं आती थी. एक्चुअली जहाँ से मैं आई हूँ, एवरीबडी नोज अस बिकॉज आई बिलोंग टू अ टंडल कम्युनिटी. Okay. सो दमन में बहुत सारे टंडल्स है एंड दे नो ईच अदर सो वेल. पैसे लेना रिश्तेदारों से, आई यूज टू फील ऑड स्टार्टिंग में. तो इवन इट हैपन इन चला, कोई आ जाता था पहचान वाला तो हाँ लेके जाओ. इट वॉज लाइक दैट. सो देयर वर क्वाइट फ्रेंड्स हु यूज टू बी देयर एंड दे यूज टू टेल मी दैट दिस इज रॉन्ग. Though it is 100 rupees, don't feel shy about it. Because it is your earnings. Because you're working hard for Yes. And you can't just donate your business. it. 100%. So then धीरे धीरे it came up that no, it is my business, so I don't have to feel shy to take that money. आप बोल रहे थे कि चला वाला ब्रांड स्टार्ट किया, उसके बाद में कोविड में you had to close it down. Yes. So how did COVID affect your business? A lot. Because Chala branch gave me double profit than a Daman branch. Because Daman branch was very, very small. I had taken a space only where I can keep a counter in Daman. So ek banda can sell the cake like that. That was not much profitable than this Chala branch. But then the rent of Chala branch was quite high. So COVID में ऐसा था, I requested, but then obviously सबको needs थी, तो owner didn't agree with it, and we didn't know कि COVID कब तक चलने वाला है. So मेरे स्टाफ को भी issues होते थे जहाँ लोग रहते थे. धाबेल का चेक पोस्ट आने के लिए उनको दे आस्क फॉर आधार कार्ड और कोविड का जो था ना सिस्टम, कोई भी बॉर्डर क्रॉस होता है तो इट गॉट सो डिफिकल्ट विद द स्टाफ एंड दे ऑल वांटेड टू गो होम आल्सो. सो देन आई हैड टू शट डाउन एंड इट वाज क्वाइट लॉस. द गुड थिंग आई डिड इज जितना भी मेरा सामान था, द इंटीरियर थिंग, आई गॉट इट आउट. एंड जैसे कोविड खत्म हुआ मैंने एक और ब्रांच खोल दिया एंड आई यूज्ड ऑल द मटेरियल्स फॉर द इंटीरियर. तो मेरा वहाँ पे थोड़ा यूज हो गया. अदरवाइज सबको ही प्रॉब्लम थे, सो इट जस्ट वेंट ऑफ. एंड हाउ वाज द बेकरी वर्किंग ड्यूरिंग कोविड? दमन ब्रांच में देयर वर क्वाइट पीपल कमिंग टू मी एंड आस्किंग फॉर केक्स, but there was no safety also. Initial time तो मैं ही खुद नहीं बना के देती, और it was a home baked cakes. तो home baked cakes था तो they used to trust me a lot. तो मैं घर से बना के दे रही हूँ, but then client जो आते हैं उनको मैं trust नहीं कर पा रही थी. So then I had to see my safety. Initially time I didn't take orders, but then later on थोड़ा जब COVID थोड़ा normal होने लगा, then they used to visit home and जहाँ मेरी बेकरी है वहाँ ही मेरा फ्लैट है. ओके. सो एवरीथिंग बेक्स देयर इन द फ्लैट एंड नीचे बेकरी है. सो दे गेट फ्रेश केक. पीपल कोविड के टाइम पे तो आए थे, लेकिन फिर आई डिड इट दैट वे. पहले सेफ्टी तो देखना ही पड़ रहा, क्योंकि माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट. ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन कोविड. डिडंट लेट मी आउट एज आई हैव अ डॉटर. सो ही यूज्ड टू टेल मी लाइक यू हैव टू लुक आफ्टर हर, नॉट योर बिजनेस. सो उस टाइम पे मैंने थोड़ा कम कर दिया था. Now, as you said that you have a daughter, how have you been balancing the daughter thing and the work thing? Thea is 10 years old now. So I started my business when she was 5 years old. So it's been 5 years. So initially time पे उसका schooling रहता था. उसके बाद में I used to go for work. Few days of my business when I started, I struggled there a lot. I mean, she was not having food because of me. मम्मा आप कब आ रहे हो, कहाँ पहुँचे, और ऐसे ना आदत हो गई थी उसे मेरे बिना वो खाना नहीं खाई. तो और फिर मुझे भी लगता था कि एटलीस्ट खाना खिला के आ जाऊँ. सो खाने के टाइम पे आई यूज्ड टू रीच दे. फिर कुछ भी काम हो आई रीच. देन आई थॉट बिजनेस तो मैं करूँगी ही, बट थोड़ा टाइम ना मैं दूंगी इससे, बिकॉज एवरीथिंग इज मी फॉर हर. जब मैंने बेकरी स्टार्ट किया था तभी तो थोड़ा स्ट्रगलिंग होता था उसको लेके भी आ जाती थी बेकरी पे. एंड स्कूलिंग के टाइम पे स्कूल, फिर डिनर लंच साथ में ही करते थे.
ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया था मेरा, बट शी रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम मी because what all incidents happened in my life, I thought of giving her more priorities and more attention. मुझे एक डर सा भी हमेशा रहता था कि अगर मैं उसे अटेंशन नहीं दूँ तो what she will feel about. That was initial time. But धीरे धीरे ना I felt like कि मैं सब कुछ जो भी कर रही हूँ मैं अपने लिए और उसके लिए ही कर रही हूँ. And वो भी ना जैसे वो 5 साल की है लेकिन जैसे वो बड़ी होती गई she got mature than what age she is. Normal बच्चों की तरह नहीं थी, वो ज़्यादा समझने लगी. So she knows the timing. My mom is working, she'll be coming home. And sometime if I say कि you can have your food by your own, तो वो नानी के साथ बैठ के खा लेती. Now तो she is 10 years old, now तो she understands a lot. And she cooperates. That's great. So Tia was special since she was born. Yes. She was a preterm delivery. Yes. Thea, I had preeclampsia during my pregnancy. So Thea was born 29 weeks. That was not in India. That was in UK. मेरी शादी ना 20 साल में ही हो गई थी. उसके बाद मैं UK चली गई. बालिका वधू. When I was pregnant, 3rd month of my pregnancy, I had a scan. So doctor said to me that your baby is not a normal baby. Down syndromes हो सकते हैं बेबीज को. तो आप you have a choice that you abort or you can have a test. So I went home, I Google and searched what is it about. So it seems if I do a test, then 99% chances है कि miscarriage हो जाए. तो I went back and I said no, I don't want to test or anything, but I'll keep the baby. Then they are like you will have to abort, otherwise baby अगर आ जाए तो it will be a challenging for mother, parents and the kid. So it's better you abort the kid. And it was very, very shocking to me. And I didn't know whom to share or I didn't tell anyone about it. My husband knew it and he said to me, you should think about, but motherhood आ जाता ना, एक बार बच्चों को देख ले, फिर we can't think about abortion or something, right? So I said no, I'll keep the baby and let's see. Then every 2-3 weeks ना scan होता था. And every time there was a negative result. Okay, like आपके बच्चे का पैर लंबा है, एक पैर छोटा है, हेड का circumference बड़ा है compared to this. So every time there was a negative result. So then I still went. I when doctor used to tell me all this or read my reports, no, मैं ना ignore करती थी. और मुझे इग्नोर करना ना, लाइक आई थिंक मुझे वो पावर मिल गया था उस टाइम पे कि आई हैव टू इग्नोर सच थिंग. और मैंने पहले तो किसी को बताया नहीं था ये सारी चीजें. एंड देन ये हो गया कि ब्लीडिंग चालू हो गया मुझे 29 वीक्स में. ओके. एंड एक रिपोर्ट में ऐसा आया था कि माई बेली वॉज लाइक टू बिग. सो मुझे एक नर्स ने बोला कि wow, you have a healthy baby inside. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन नहीं. और मुझे यूरिन में प्रोटीन आने लगा. हाँ. तो मुझे नर्स ने बोला था यूरिन में है प्रोटीन, लेकिन what is that we didn't know. I didn't know what is that. होगा kind of. And there is no medication. I mean, they will not tell you कि ये लेने से ये होगा और ये खाने से ये होता है. और मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी था, वो भी नहीं मुझे पता था. सो they didn't even tell me don't eat this or eat this. Okay. So 29 weeks होने को आए and I got a bleeding at night around 3 o'clock-ish. उस night को my husband was at party.
So he returned home very, very late. And I was very angry also because he returned so late. And उसी रात को मुझे ऐसा इंट्यूशंस हो रहा था कि कुछ हो रहा है मुझे. And then I checked and it was all blood over the bed. And I woke him up. I said, ये हो रहा है. And he didn't know what to do. He got more panic than I was. My mother was with me during that time. But mummy को बताती, she would get more panic. Okay. Because obviously she doesn't know how to talk to यूकेरियंस. हाउ मतलब कैसे बात करना, इंग्लिश में बात करना पड़ता है. तो आई सेड कॉल एम्बुलेंस, but he didn't know where to call, what to do. He got so panic looking at the blood. Then I called ambulance and वो मुझे ले गए. And they took me to hospital. And then 2 दिन तक they were keeping me under observation. Okay, so baby का heartbeat check करना. So every time it was there, I could feel. But then later on मुझे ऐसा लगने लगा ना, जब के समझ 17 को, थिया was born on 18th. So 17 Feb no, मुझे ऐसा होने लगा कि ब्लीडिंग कब हुई थी आपको? When did the bleeding start? 15 को हुआ. और उसके बाद कंटिन्यूस हो रही थी या नहीं हो रही थी. I think हो रही थी because I was wearing sand. Yeah, Okay. so I think हो रहा था. So then मुझे वहाँ पे ना यूके हॉस्पिटल में they will not allow any other family members to visit you. Only husbands are allowed or any one person from your home. अभी मम्मी को तो नहीं समझ में आता है. So मुझे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया था थोड़ा बहुत. And I said something is wrong. So I said to my husband, something is wrong. मुझे ठीक नहीं लग रहा है. आप ना बात करो किसी से, डॉक्टर से या नर्स से. तो उन्होंने बोला कि ये सब ना ऐसे इंडिया में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता. ठीक है. तो मैंने बोला नहीं, मतलब वो इंडिया और यूके की तो बात ही नहीं आती वहां पे. यू गो एंड टॉक बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग एंड आई एम टेलिंग यू. बट ही डिडंट. सो मेरे पास एक जो नर्स आई ना, तो मैं उससे मैंने रिक्वेस्ट किया आप मेरा स्कैन कर दो. तो चीज लाइक ऐसे ही थोड़ी ना स्कैन होता है. आई सेड नो, समथिंग इज रॉन्ग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कैन यू जस्ट डू अ फेवर. तो शी सेड ओके. देन मैं नीचे गई, 2nd फ्लोर पे जाना था मुझे. एंड मैं खुद ही गई नीचे, मैंने स्कैन करवाया. एंड द रिजल्ट वाज मेरा प्लेसेंटा अलग हो गया था. ठीक है. मेडिकल टर्म में मुझे नहीं समझ में आया था उस टाइम पे. सो रिजल्ट तो आ गया, लेकिन मैंने पढ़ा भी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो आई सेड टू दैट नर्स, कॉल डॉक्टर, आई वांट टू टॉक. शी इज लाइक नो, डॉक्टर्स आर, वहाँ पे शिफ्ट होता है तो 6 बजे शिफ्ट खत्म हो जाता है. सो दे आर लाइक शिफ्ट चेंज हो रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम. आई सेड नो, आई वांट टू टॉक राइट नाउ. इफ एनीथिंग हैपेंस तो मैं कुछ एक्शन ले लूंगी. शी इज लाइक डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, ये नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्शन पेन नॉर्मल है. मैंने बोला मेरे लिए ये रिजल्ट नॉर्मल नहीं लग रहा है, मुझे पूछना है. तो आई जस्ट आई होल्ड हर हैंड एंड आई वाज रिक्वेस्टिंग हर, लाइक आई बेगिंग हर. लेकिन वो बहुत, she was very good to me. She's like, okay, you don't cry, I will ask. So जैसे she went out, she saw that जो डॉक्टर का शिफ्ट खत्म हो रहा है ना, वो डॉक्टर पास हो रहे थे. तो she requested डॉक्टर only talk to that patient ऐसे. तो मैं जनरल वार्ड में थी. जनरल वार्ड में सिर्फ कर्टन्स होते हैं. सो डॉक्टर मेरे पास आए एंड ही सेड के क्या हुआ ऐसे. And he was Indian. तो ऐसे मुझे ना ऐसे हो रहा है, आप ये रिपोर्ट चेक करके मुझे बताओ क्या है. And as soon as he saw the paper, he started yelling at everybody. कि मतलब वो इतना चिल्लाने लगे सब पे, और मैं ब्लैंक आउट हो गई थी बिकॉज मैं और पैनिक हो गई.
And then I was taken to the theater, operation theater, and I said I want to talk to my father because I was scared कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है ऐसा. तो he said to me that it is me who will save you and your daughter. Don't worry. So then उन्होंने ऑपरेशन किया. By 7:15 Thea was born. So when Thea was born, she was only 700 grams. And she cried so loudly. So it was like a miracle. And even the doctor said that. And then she was on oxygen for 3 hours only. And डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी है एंड शी विल बी फाइन ऐसे. उसके दूसरे दिन आई हैड 9 to 10 डॉक्टर्स अराउंड मी. मुझे कंसोल करने आए थे दैट डोंट वरी, दो शी इज अ टाइनी बेबी, शी विल बी नॉर्मल लाइक अदर्स, बस वेट कम है उसका. लाइक ओके. तब तक तो मैंने थिया को देखा ही नहीं था. तो उसका फर्स्ट पिक्चर जब मैंने देखा एंड इट वाज वेरी शॉकिंग. तो देन आई वेंट टू, आई सेड आई वांट टू सी हर. तो डॉक्टर सेड नो. So because you have said so many things now, the gynecologist in me is not able to resist. अब मुझे मन कर रहा है कि मैं सब चीज आपको क्लैरिफाई करके बताऊं कि क्या क्या था. So basically, in the 3rd month, they must have done your NT scan. Okay. So in that there are some soft markers that we look for as doctors. अब यूके में कैसे होता है वो मुझे नहीं पता प्रोटोकॉल, बट what we do here that I'll tell you. That we look for soft markers की डाउन सिंड्रोम के लिए कुछ हमको डाउटफुल तो नहीं लग रहा है. ठीक है. जैसे कि एक होता है नेक के पीछे की थिकनेस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी. तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है. फिर ऐसे भी होता है कि बच्चे के हार्ट में कुछ वेंट्रिकल में आपको कुछ सॉफ्ट स्पॉट दिख रहा है ना. सो थिंग्स लाइक दैट. नेजल बोन दे चेक. ठीक है कि नेजल बोन बच्चे की पूरी बनी हुई है या हाइपोप्लास्टिक है, कि मतलब आधी है, पूरी नहीं है, या फिर नहीं है, एब्सेंट है. सो ऑल दीज थिंग्स वी चेक इन द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर ये नहीं मिलते हैं ना, तो देन वी आस्क द पेशेंट टू गो फॉर एमनियोसेंटेसिस, व्हिच दे मस्ट हैव आस्क्ड, कि बच्चे में से पानी निकाल के चेक कराने के लिए, है ना. सो व्हेन यू गूगल समथिंग, क्या होता है कि वहां पर जो किसी भी चीज के रिस्क होते हैं वो ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं. Okay. Because that is what the person is looking for. Yes. वो यही तो जानना चाहता है कि इस चीज में रिस्क क्या है. If I am a non-medico and I have to go through a procedure, I would also want to find out कि इस चीज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. Exactly. है ना. So that is what happened with you. तो amniocentesis में 2 से 3 बार ऐसा होता है, 2 or 3 out of 100 times, Okay. that a baby can get aborted. Okay. Not majority of the times. But then see, how did you explain me? वहाँ कोई नहीं. वहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा. प्रीक्लैम्सिया आप किसी को पूछ लो, नहीं पता होता किसी है. को नहीं पता है. That also I'll tell you what happened. So protein in urine, proteinuria बोलते हैं उसको हम, और बीपी ज्यादा बढ़ना. तो बीपी अगर किसी का बढ़ता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, कि सिर्फ बीपी बढ़ा है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग. साथ में अगर यूरिन में से प्रोटीन भी आने लग जाए, which is known as proteinuria, तो उसको बोल देते हैं प्री एक्लैम्पशिया. ठीक है. सो रेज्ड बीपी along with increase in too much weight of the patient, or increase in loss of protein, or symptoms like headache or chest pains or blurring of vision, things like this, they come under pre-eclampsia. Okay. उसमें क्या होता है, अगर पेशेंट का बीपी सपोज ज़्यादा है और सडनली वो कम हुआ या कम है, नॉर्मल है, और वो सडनली बढ़ गया, तो प्लासेंटा सेपरेट होने लगता है. अच्छा. उसको बोलते हैं अब्रप्शियो प्लासेंटा. Okay. अब्रप्शन. ठीक है. तो आपको यही हुआ कि प्री-एक्लैम्पशिया था और फिर प्लासेंटा सेपरेट हो गया.
तो सेपरेट हुआ तो ब्लीडिंग होने लगती है. तो ये भी 2-3 तरह का होता है कि या तो अंदर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो यूट्रस बड़ा होता है, हार्ड होता जाता है ना. तो वो कंसील्ड. आपको जो हुआ, आपको ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको बोलते हैं रिवील्ड, कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ब्लड आने लगा और वो निकल रहा है. ओके. और आपने जो बोला कि पेट बहुत बड़ा है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ असाइटिस, मतलब कि पेट में पानी भर गया. बीपी जब ज्यादा होता है तो असाइटिस भी होता है. इन प्रीएक्लैम्पशिया असाइटिस इज अ कॉमन अकरेंस. So, had I been your doctor, I would have told you all these एक्चुअली things. बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हाँ. बिकॉज हम एक ह्यूमन को अंदर लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना. Exactly. तो देर आई हैव सीन, जस्ट बिकॉज आई वॉज रिक्वेस्टिंग, आई टोल्ड देम कि मैं एक्शन लूंगी, तो ये चीज हुई है. अदरवाइज आई वुडंट बी इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. तो वो इट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट, है ना. 100%. So that brings me back to how the medical care system is there. कि वहाँ पे doctors, how do they attend to you? मतलब whenever you had a visit, would a doctor meet you or would you be met by a general there is always practitioner? a nurse who will visit. I mean, if there is an appointment, then we see nurses only. Okay. And any special होता है कुछ, जैसे अभी मुझे प्रीक्लैम्सिया हो गया, तो आई हैव सीन द 10 डॉक्टर्स अराउंड मी, ओके, टू कंसोल मी. नन ऑफ देम टोल्ड मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, एंड किसी ने कुछ नहीं बताया. एंड वहाँ नॉर्मली भी आपको फीवर होता है ना, तो बाय पोस्ट यू विल गेट वेरी प्रोफेशनल, यू विल गेट अ नोट, दिस टाइम आपका अपॉइंटमेंट है, ये. व्हेन यू गो देयर, यू वेट देयर फॉर लाइक, आपको अपॉइंटमेंट रहता है, यू वेट देयर फॉर लाइक 1 hour, ठीक है. और यू गो टू द जीपी एंड देन द थिंग दे विल से इज आपको पैरासिटामोल लेना है, आइब्रोप्रोफिन लेना है. ओके, एवरीबडी नोज दिस पैरासिटामोल, आइब्रोप्रोफिन वेरी वेल देयर. लेकिन फीवर क्यों है, कौन सा फीवर है, क्या है, nobody knows nothing. एंड जब वो बहुत बढ़ जाता है, they rush to India because they know that doctors will cure here only. They will guide you, they will suggest you, if this hospital don't work, they'll ask you to go somewhere else. वहाँ ऐसा नहीं होता है. थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे और वो हिम्मत थी, तो आई कुड स्पीक. अदरवाइज लेडीज कैन क्राई एंड रोके ही इन लोग वो टॉपिक वहां पे ही बंद हो जाता है. मतलब रोएंगे और कुछ भी नहीं होगा. दे विल नॉट इवन टॉक, दे विल नॉट इवन आस्क फॉर हेल्प. ओके, क्योंकि इंडियन वहां पे है, तो दे डोंट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश. तो अभी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो दे गेट एनॉयड, बिकॉज सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है. आप पूछो तो, मतलब क्या हो रहा है उस पेशेंट को, क्यों, why is she struggling or why is he struggling. वहां पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ना, इफ फिंगर कट हो गया तो इमरजेंसी एम्बुलेंस तो आ जाएगी तुरंत, लेकिन वहां पे बिठा के वो सिर्फ ब्लड बंद करके बिठा देंगे 3-4 घंटे तक. मतलब वो बॉडी में पॉइजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, nobody will care. It's only name emergency लिखा है, लेकिन there is no emergency. Okay. Like in my case only, they were taking it very lightly, no? But it was an emergency. प्रीएक्लैम्पशिया अब्रप्शन, मतलब when I was a resident, हम लोग भागते थे पेशेंट को लेके. ओटी में टेबल ट्रॉली सब हम लोग बनाते थे कि प्रीएक्लैम्पशिया का पेशेंट है, अब्रप्शन है, चलो फटाफट. अब्रप्शन बोलते ही सब एकदम हाई अलर्ट पे आ जाते थे, एंड एवरीबडी वुड रन, बी इट अ नर्स, बी इट एन ओटी असिस्टेंट, बी इट द गायनोकोलॉजिस्ट, बी अ रेजिडेंट, एवरीबडी, पीडियाट्रिशियन भी, सब लोग एकदम विजिलेंट हो जाते थे इन माय रेजिडेंसी. उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे पता चला कि इट इज वेरी डेंजरस. सो कंपेयरिंग द हेल्थ केयर सिस्टम देयर एंड हियर इन आवर कंट्री, so what do you say? अच्छा, तो मैं तो बोलूंगी अपना ही अच्छा है. अपना सच में बहुत अच्छा है. ओके, बिकॉज एज आई सेड दैट
अगर आपसे नहीं होता है, आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है नहीं हो रहा है, आप ये बोलोगे आप मुंबई लेके जाओ, या आप रेफरिंग टू अ हायर सेंटर. ओके आप बताओगे कि क्या हो रहा है. वहां पे बताते ही नहीं क्या हो रहा है. वहां पे एक चीज अच्छी है कि दे आर वेरी पोलाइट. एवरी सेंटेंस में थैंक यू सॉरी होता है, प्लीज थैंक यू सॉरी. वो यहाँ नहीं होता. वो यहाँ नहीं होता, यहाँ पे इतना होता है कि रूड होता है सब. है ना. आई थिंक इंडिया इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग. फॉर बिजनेस हो जाए, मेडिकल टर्म हो जाए, स्कूलिंग हो जाए, एवरीथिंग इज फैब. एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं यूके में 9 years रह के मैं इंडिया सेटल हुई हूँ. इंडिया में सेटल होना इज लाइक यू नीड द स्ट्रेंथ आफ्टर गोइंग टू यूके. यूके इज इजी मनी. इंडिया इज नॉट इजी मनी. स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन इंडिया से प्यार करना बहुत जरूरी है आई थिंक. हाँ. तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो. जो अपॉर्चुनिटी आपको वहां नहीं मिलती है ना, वो आपको इंडिया में मिल जाती है. मेडिकल टर्म में आप देखो, आज जैसे मैंने आपको कहा, प्राइवेट हो तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि जैसे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग कैसे होते हैं, वहां पे लोग ऐसे हैं, दे लाइफस्टाइल. प्राइवेट कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, एंड करेंगे भी तो दे काउंट इन पाउंड्स. और जब इंडिया आते हैं दे स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑन मेडिकेशन. बट दिस इज द ओनली थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप जहाँ पे रहते हो आप इंश्योरेंस ले सकते हो वहां का भी. आप वहाँ पे उतना इंश्योरेंस पे करके आपका मेडिकल टर्म जो भी है आप कर सकते हो. So I want to ask, because after Thea was born when she was 29 weeks old. She was 700 grams. तो NICU में उसको रखा था. तो I want to know about that time. How you were. क्योंकि डिलीवर होते हैं तो उसके बाद में पोस्टमार्टम ब्लूज सबको होते हैं. So how did you go through that time when she was in NICU? And were you staying at the hospital or did you stay at home? How was it? I was discharged on 6th day of my delivery, and I could meet my daughter anytime I want. लेकिन NICU में थी तो I couldn't sit for a long time. चेयर पे. there was a back pain obviously. तो और हॉस्पिटल में ये था कि मैं 4th floor पे थी, तो सेंटर वाज 2nd floor या 1st floor ऐसे कुछ. तो आई कुडंट खुद से जाना चल के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था. तो दिन में 2 बार मिलती थी. जब वहाँ जाके थिया को देखती थी ना, तो दूसरे सारे बच्चे ऐसे थे, ट्विंस थे, छोटे छोटे सारे. लेकिन जब मैं मेरी रूम में आती थी तो मैं देखती थी जो नॉर्मल बेबी रहते हैं 9 months के, तो दे आर हेल्दी एंड यू नो. तो मुझे ऐसे थोड़ा ऐसा लगता था कि इज शी ओके, मतलब क्या हो रहा है, आई डोंट नो. डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि शी इज फाइन. एक और बात, जब थिया का सारा रिपोर्ट्स नेगेटिव आया था, मैंने कहा है ना, तो व्हेन शी वाज बॉर्न सारे गलत थे वो रिपोर्ट्स. शी वाज नॉर्मल बेबी, जस्ट कि वो 700 grams की थी, अदरवाइज उस डाउन सिंड्रोम नहीं था, कोई abnormality कुछ भी नहीं था. आई वॉज प्रिटी श्योर ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे मन में था कि, एंड वो होता है ना, व्हाट वी थिंक इट हैपेंस. सो आई ऑलवेज थॉट कि शी इज हेल्दी. Power of manifestation. यस, पावर. एंड उस टाइम पे तो ये मैनिफेस्टेशन क्या है इसका भी कुछ नॉलेज नहीं था. बट देन वो इनर फीलिंग जो होता है, स्पेशली मदर्स को, इट ऑलवेज वर्क. एंड शी वॉज नॉर्मल. लेकिन फिजिकली आई कैन सी हर बॉडी, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, मुझे डाउट था इफ शी कैन सी प्रॉपर और शी कैन हियर प्रॉपर, एंड वो सब टेस्ट तो तभी नहीं होते हैं. वहाँ पे ना एक इंक्यूबेटर में एक विंडो रहती थी वेयर आई कैन जस्ट टच हर ऐसे. तो वो जब मैंने विंडो एक दिन खोली ना, फटक से वो उठ गई. तो आई वॉज लाइक ओ शी कैन हियर प्रॉपर. फिर आइस का थोड़ा बहुत, एवरी डे वॉज अ चैलेंज, क्योंकि
इतने सारे ट्यूब्स लगाए थे उसे, तो एवरी डे वो एक दो मतलब 2-2 दिन में वो ट्यूब्स चीन मतलब निकालने भी जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे 25 डेज थी जर्नी। इट वॉज अ चैलेंजिंग फॉर मी। और थिया को टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट लेना, तो जब भी ब्लड टेस्ट लेते थे ना, तो सब बच्चे जोर जोर से रोने लगते थे, तो पेरेंट्स को बाहर भेज देते थे। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं इसके पास रहूंगी, आई सी हर। तो कभी रोती नहीं थी। और वहां पे ब्लड टेस्ट लेना मतलब दे टेक बॉटल्स एंड बॉटल्स, इतनी छोटू सी, और फिर इतना सारा ब्लड ले लेते थे। मुझे लग रहा था क्या करेंगे, मतलब इसमें ब्लड है ही नहीं इतना। बट शी वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। आई मीन आई हैव नॉट सीन हर क्राइंग फॉर द पेन। तो मुझे ना अंदर से ऐसा लगता था कि ओ भगवान ने शायद उसको ऐसे इतना बनाया है स्ट्रॉन्ग कि उसको कुछ पेन नहीं हो रहा है। इट्स इन माई माइंड कि मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ ना कि इसको लगा है तो रो रहा है ऐसा, लेकिन मुझे थिया को देख के कभी फील ही नहीं हुआ कि इसको दुखने वाला है या दुख रहा है। आई हैव नेवर टेकन हर पेन। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज द वन हु गिव मी स्ट्रेंथ। मतलब कि रोती थी, हर वॉइस इज टू लाउड, एंड वो ना ऐसे शार्प वॉइस है उसका। तो एवरी 2 आवर्स फीडिंग का टाइम रहता है ना, तो वहाँ पे एक इंक्यूबेटर के ऊपर एक लाइट रहती है, तो नर्सेज हैव टू चेक दैट इट विल बीप आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो नर्सेज टेल मी दैट इट इज ओनली योर डॉटर जिसके लिए मुझे ये बीप की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज शी क्राइज सो लाउड कि इंक्यूबेटर के बाहर आवाज आता है। तो उसका आवाज भी अच्छा था। तो आई वॉज लाइक, मैं खुश थी कि मतलब सब कुछ सही है इसके साथ। 25th डे के बाद उसका डिस्चार्ज हुआ। बट शी वॉज सो प्रिटी। आई मीन छोटू सी थी विद दैट ब्लैक हेयर, एंड वो बाल भी ना उसके एकदम स्ट्रेट थे। तो वहाँ के लोगों को ना ऐसे अपने इंडियंस की बाल बहुत पसंद है। तो जो नर्स थिया का ख्याल रखती थी ना, वो उसको थिया से इतना लगाव हो गया था, शी लिटरली केम आउट टू ड्रॉप कार के पास कि मैं अब इसको मतलब कभी कभी ले आना, बिकॉज शी इज लाइक। और उसका नाम ना मिरेकल बेबी हो गया था वहाँ पे। हाँ, सो एनी स्टूडेंट्स या विजिट रहता था ना, तो दे यूज्ड टू कम एंड शो थिया कि थिया को देखो ऐसे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आई वाज गोइंग वे होम, मुझे कॉल आया एंड दे सेड दैट आपकी बेबी को ना होल है हार्ट में। तो अगेन मैंने इससे लड़ रही थी भगवान से, ऐसा लग रहा था मुझे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू विल गिव मी रॉन्ग रिजल्ट, ऐसा लग रहा था। एंड आई सेड मुझे अभी का भी टेस्ट करवाना है एनी हाउ। सो दे सेंड मी टू अ हॉस्पिटल विच वॉज अ बिट फार फ्रॉम लेस्टर। वहाँ पे थिया का वापस टेस्ट हुआ। अगेन इट केम नेगेटिव। मतलब एक रिपोर्ट्स नहीं, ये 6 महीने में सारे रिपोर्ट्स गलत थे। So I don't know how the system works. And any mother and father, मतलब उनको शॉकिंग लगेगा ये सारे रिजल्ट देख के, है ना। एंड बट देन आई वॉज प्रिटी श्योर इसको कुछ नहीं है, एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसे। तो दैट रिपोर्ट ऑल्सो वेंट रॉन्ग। So your whole postpartum period after your delivery, आपका पूरा फोकस आपकी बेबी पर ही था। So उसके बाद वो खुश थी, she was growing stronger, that gave you strength. yes, पूरा थिया पे था। और मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि मैं कब उसको इंडिया ले जाऊं और कब मैं उसको सनलाइट दूं। मेरे मन में हमेशा ये रहता था, because I was never happy in UK. How supportive was your family of you when she was in NICU? Did you have any postpartum depression? Anything? I was depressed, तो मैं फीडिंग नहीं कर पा रही थी थिया को। तो दैट वाज अनदर थिंग, मैं थिया को फीडिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। ओके, लाइक 20 ml ऑफ मिल्क पर डे इज नथिंग। एंड दूसरे सारे बच्चे जो प्रीमिस थे, उनकी मम्मी दे यूज्ड टू फीड देम द ब्रेस्ट फीडिंग, बट आई कुडंट। आई ट्राइड अ लॉट, बट देयर वाज नो मिल्क, it seems. It was because I went into depression.
So they gave me a tablet जिससे थोड़ा बहुत मिल्क आए. With that I cope up and मैंने थिया को 3 साल तक बॉटल में ही मिल्क दिया, मेरा मिल्क हमेशा. हाँ, मुझे देना ही था. 3 years थोड़ा थोड़ा भी मैं थिया को देती थी, पंप करके. हाँ. Because she didn't know how to take it. How much ever we used to try, she used to cry a lot क्योंकि उसको जल्दी जल्दी पीने की आदत थी कि नहीं पता, बट वो नहीं इरिटेट हो जाती थी. So then we started bottles. So bottle is ऐसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इतना हो जाता था क्योंकि उसको स्टरलाइज करो, दिन में सारी बॉटल्स को स्टरलाइज करो और वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था. एंड डॉक्टर सेड टू मी दैट जितना हो बच्ची को मैं ही हैंडल करूँ और किसी को ना दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे. व्हेन शी वाज डिस्चार्ज, सो माय मदर वाज विथ मी, माय इन-लॉज वर at home during that time, but then they shifted in few days to another house. That was a time when I begged them to stay with me because मेरी मम्मी वापस इंडिया जाने वाले थे. She had come when I was pregnant. So उनके पास सिर्फ 6 महीने की वीज़ा थी, तो उनको इंडिया जाना था. तो I said I need someone to help me out, you know, with the baby. But then my in-laws, they shifted to another house during that time. I did by myself everything. It was quite hard because वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसको ऐसे और वहाँ पे ठंडी बहुत है यूके में, तो टेम्परेचर की वजह से ना वो उसको इतना वार्म मुझे रखना पड़ता था एक रूम में. एंड नहलाने के टाइम पे भी वो टब, छोटा सा टब में बेड पे लेके आके नर्स यूज्ड टू टेल मी दैट 1 मिनट के अंदर निकाल देना, वो पूरी ग्लू हो जाएगी. सो इट वाज बिट स्कैरी फॉर मी. फिर धीरे धीरे गॉट यूज्ड टू इट. इतनी सब यूके में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी अपने कंट्री में से इतने सारे लोगों को जाके क्यों सेटल होना होता है वहाँ पे? शाहरुख खान ने मतलब पूरी पिक्चर बना दी डंकी उस पे. तो व्हाई डू सो मेनी पीपल, व्हाट इज द फैसिनेशन विद सेटलिंग आउटसाइड? दमन से भी बहुत सारे लोग, दमन से तो बहुत सारे लोग गए हैं हमारे टंडेल समाज में से, बहुत सारे. गुजरात से भी बहुत सारे जाते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज द फैसिनेशन विद सेटलिंग? वन थिंग इज अर्निंग इज वेरी इजी देयर. आप लेबर जॉब कर लो तो आप 900 रुपीज पर आवर आप कमाते हो, तो इंडियन करेंसी में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 9,000 रुपीज. तो उस हिसाब से उन लोगों को वो कंट्री में आई थिंक दे वांट टू सेटल देयर. Otherwise, you see, there is no festival. There is festival, but you don't enjoy the way we enjoy here. है ना, होली की है मैंने वहाँ पे, लेकिन होली के टाइम पे आई वेयर दैट जैकेट, किसी ने भूल से अगर पानी लगा दिया तो हो गया वहाँ पे होली. मतलब कलर से खेल लो, सूखी होली. दिवाली करो तो यू हैव टू सी द प्लेसेस वेयर यू बर्न क्रैकर्स. ओके, आप कहाँ भी कुछ नहीं कर सकते. इंडिया इज अ प्लेस फुल ऑफ, इट इज वेरी कलरफुल एंड फेस्टिवल, वो सब आता रहता है ना. वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे पैसे है जिससे संसार चलता है. लेकिन what I believe is you have money but you don't have your life. Why that money is for? है ना, आप कमाते हो और फिर आप वहाँ पे ही ऐसे ही रखोगे, you don't want to spend. और वहाँ स्पेंड करने के लिए भी जगह होनी चाहिए काइंड ऑफ. आप अब्रॉड जाओगे ना, आपको थोड़े दिन अच्छा लगेगा, दैट क्लीनलीनेस एंड सीनरीज एंड सॉरी थैंक यू प्लीज सॉरी थैंक यू प्लीज, वो आपको अच्छा लगेगा. लेकिन एट द एंड बैक ऑफ द माइंड देयर इज ऑलवेज इंडिया. आप किसी को ही पूछ लो and people there will celebrate India जीत गया, वहाँ पे celebration हो रहा है. Okay, that is the reason people go, because they want privacy, they don't want gossip, they want that freedom and money. So आप यहाँ पे अगर पहन लो ना shorts, तो people will say, oh, देखिए क्या पहन के निकली है. वहाँ पे आप पहन लो shorts, nobody will even look at you. वहाँ पे इतना freedom है. And why did you decide to come back? Okay, now it's high time. Now I want to go back to my country. I always wanted to come back. Okay. The very first day I went UK, मैं गई थी टूरिस्ट वीज़ा पे.
तो मैंने पूरा यूरोप टूर किया था विथ माई पेरेंट्स. फिर उन लोगों ने मुझे लेस्टर छोड़ा. तो जब मैं लेस्टर गई ना, आई सॉ द हाउस. वेरी फर्स्ट डे आई मेड अप माई माइंड दैट आई विल लीव दिस कंट्री वेरी सून. ओके, बिकॉज जैसे आई वॉज brought up here, there it was opposite. Okay. It was completely opposite. There was a days when I didn't get to sleep on bed. I used to sleep on sofa. I used to wake up 4 o'clock, cook for everybody, नाश्ता बनाओ. जब मुझे कुछ नहीं आता था, so the first thing they taught me is making roti. मैं खुश हो गई थी, मुझे रोटी बनाना सिखा रहे हैं. ठीक है. द रीजन बिहाइंड दैट वाज सबसे ज़्यादा रोटी बनती है और वो टाइम कंज्यूमिंग है. सो लाइक 55 रोटीज अ डे. और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे हम तो काम पे जाते ही है और मेल्स भी सारे काम पे जाते हैं. ठीक है. लेकिन मैं जब घर आती हूँ तो इट इज़ ओनली फीमेल हु वर्क्स, है ना. खाना बनाओ, कपड़े धो, इस्त्री करो, और फिर सबका टिफिन भी बनाओ, सबको दो. नाम लिख के रखते थे कि ये टिफिन लेके जाना है इनको. सबके कपड़े इस्त्री करके सबके रूम में. और मैं सबसे छोटी बहू, एंड आई वाज लाइक बहू है तो आई हैव टू डू दिस, एंड आई कांट कंप्लेन टू माय पेरेंट्स कि ये सब हो रहा है यहाँ पे. फिर ठंडी लगती है तो हीटिंग भी मैं खुद से ऑन नहीं कर सकती हूँ. एंड मुझे वहाँ का वेदर थोड़ा भी पसंद नहीं. इट्स टू कोल्ड. आई वॉज डीलिंग विद दिस बिकॉज इट वॉज माई इन लॉज हाउस. मुझे लगा शायद सब लोग यहाँ पे यही लाइफस्टाइल जीते हैं. तो मुझे कुछ खाने का भी मन करता था ना बाहर का, तो छुप छुप के खाते थे. समझ लो आप 1 पाउंड का चिप्स ले लो, 100 रुपीज. तो माई हस्बैंड टेल मी दैट थ्रो दिस पैकेट बीन में बाहर. And you know, wipe your face. No, don't tell anyone that you had this. तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब I can't even do anything, eat at least. मैं 1 पाउंड भी नहीं खरीद सकती हूँ किसी को पूछे बिना. So कैसी लाइफ है ये, है ना. Then when I bought house, Thea I had in my mind, I cannot give this life to my daughter. Though I will have house, though I have car, but she will not know outdoor games. वो सुकून जो बाहर मिलता है इंडिया में, है ना. वहाँ पे कैसा है, नेबर से बात नहीं होती. मेरी नेबर ने मेरे साथ आई थिंक 3 साल के बाद हम लोग कांटेक्ट में आए. एंड इफ यू इवन स्टेयर एट समबडी, they'll get annoyed. I mean, stare in the sense, एक ऐसा झलक देख लिया ना किसी को तो they don't like it. So you see how people are. ये लोग डरते हैं या क्या मुझे पता नहीं, but there is no love in anybody's heart. Not very friendly. Not very friendly. और है ना सब बहुत, मैं खुद ऐसी थी, मैं सेल्फिश बन गई थी. जैसे कि मेरी फ्राइडे तक शिफ्ट है, सैटरडे मेरी छुट्टी है. So I planned a popcorn and a movie at home. और कोई आ जाता है तो अंदर से ना वो गुस्सा आता है, क्यों आए. मतलब मेरा मी टाइम था, मेरा टाइम था, मेरी फैमिली टाइम था, ये लोग क्यों आ गए. और वही चीज इंडिया में होती है ना, कोई आ जाता है ना, वी लाइक सो मच, हम खाना बनाने लग जाते हैं एंड यू नो क्या कुछ नहीं. बट वहां पे आप किसी घर पे जाओगे ना आज के टाइम पे भी, यू स्टे देयर फॉर 10 days एंड देन इनसाइड यू विल कीप ऑन फीलिंग अब मुझे निकलना है यहाँ से. सबका मुंह, सबका मूड, सब कुछ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे. आई थिंक बिकॉज 8 आवर्स शिफ्ट ही करते हैं और हम यहाँ पे 12 घंटा भी काम करेंगे ना, यू विल स्टिल हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स. आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेदर, नेचर ऑफ पीपल, You just wanted to come back. I just wanted to come back and I didn't wanted to give this life to Thea. Even education, if you see schooling, India is best for schooling. वहाँ पे what they study, what they don't, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. Okay, like 10 years की बच्ची is quite mature. They know everything. जो हमें 12th में या कॉलेज में भी नहीं पता रहता है. They know when they are 10. Innocence नहीं होती बच्चों में. थोड़ा भी नहीं होता. And we can't stop them. If they are doing something wrong, we can't stop them. They can call police anytime that my mom is
yelling at me or she's beating me. यहाँ पे एक चमाट दो, बैठो, है ना? तो वो संस्कार ना आप इंडिया में ही दे सकते हो, आप वहां नहीं दे सकते हो. And I don't know why people feel so proud to be abroad just because they speak English or not. I don't know. यहाँ पे आएंगे और इन लोग दुकान वाले के पास जाके बोलेंगे where's the toilet? उसको क्या समझ में आएगा? आप सीधी लैंग्वेज में पूछ सकते हो ना कि बाथरूम कहाँ है भाई, है ना? उससे आप बड़े नहीं हो जाते. And I feel that you are so senseless that you don't know where किसके साथ कैसे बात करना चाहिए. You should never low down anyone. वो शॉपकीपर को आप वो नीचा बता रहे हो, मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक से हिंदी बोल लो, आपकी भाषा बोल लो तो मैं मान लूं. Any UK people you speak Hindi with them, they will not know. So I feel I don't speak Hindi very well. मुझे भी नहीं आती. And I don't know Gujarati also very well, which I feel shame कि मैं इतना प्योर नहीं बोल सकती हूँ. लेकिन when you see my daughter, she speak more nice than me. वो बहुत अच्छा बोलती है, जो मैं नहीं बोल सकती. तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आके इतना से प्राउड फील कर सकते हैं. लेकिन मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, आई रियली फील वेरी प्राउड दैट आई एम फ्रॉम इंडिया. So you bought a house in UK. So what was the work that you put in it? What was the process of buying it? It must have been quite difficult, right? Yes, like वहाँ पे ना साइट्स रहती है, okay, एजेंसी की साइट्स रहती है. So I used to do night shift as I told you. तो काम से आके I used to see that site and check कहाँ घर है available for sale. So then after the night shift morning when I used to come home by 7 o'clock, I used to travel around to see the houses. मैं बुकिंग करके घर देखने जाना. Mortgages कैसा रहता है, monthly you pay. 1 year was very difficult because I had to pay £1,000 mortgage per month. और घर में it was कुछ भी नहीं था, बेड नहीं था, कुछ नहीं था. तो मैंने इंडिया से वो गद्दा आता है वो मंगवाया था. दो वाईफाई तो जरूरी था वहां पे, तो फर्स्ट थिंग वी बॉट वाईफाई. एंड वॉशिंग मशीन, वहां पे हाथ से कपड़े नहीं धो सकते, इट इज वेरी कोल्ड, द वाटर इज वेरी कोल्ड. तो धीरे धीरे हम लोग ने वो 6 महीने में हम लोग ने धीरे धीरे सब कुछ लिया, घर थोड़ा थोड़ा रिनोवेट किया. ड्यूरिंग दैट टाइम ही हेल्प मी, because he was quite happy, my husband was quite happy that finally घर ले लिया. ऐसे 2007 में यूके गई थी, 2010 में मैंने घर ले लिया था. So it was a good achievement. Yes. So any message for the people of Daman who want to settle outside of India? I would say that you should have power and strength to work anywhere. If you can work in UK as a laborer, you can do a business here in India as well. मतलब business छोटा हो या बड़ा हो, business होता है. और काम you can't say बड़ा काम, छोटा काम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. इंडिया में रहना, इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको ढूंढना है. और आप ना इंडिया से प्यार करोगे ना, तो आई थिंक यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज हियर इन इंडिया टू बिल्ड अप. फिर यूके जाना आई डोंट थिंक जरूरी है. So winter depression, उसको seasonal affective disorder बोलते हैं, SAD. So a lot of people have winter depression. A lot of people, I think 99% होगा वहाँ पे. Younger kids, they move out every Saturday, Sunday. But parents and old age people, they can't move out. मतलब आप बाहर जाओगे, आपको इतने सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे, okay? And वहाँ पे अगर बारिश हो गई, then it is like क्या हो गया है इस जगह पे, ऐसा हो जाता है. मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए. यहाँ की बारिश we have fun, no? अच्छा लगता है ना. वहाँ पे अगर एक गिरा ना तो ऐसा लगता है कि मर गए. एकदम से ना खून ऐसे हो जाता है. मैं जब कॉलेज जाती थी ना, तो मैं हॉट चॉकलेट लेके जाती थी हाथ में स्टेशन से, just because to keep my hand warm, though I'm wearing gloves. That cold. अभी समर अभी अच्छा हो रहा है वहाँ पे, as I got to know, but उतना सीजन, that's it. फिर आप 3 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, एंड सारे स्टोर्स 5 बजे तक बंद हो जाते हैं. देन यू गो वे, नो शॉपिंग, कुछ भी नहीं, आप घर पे बैठो.
जैसे कोविड में कैसे हुआ था, Hmm. वहां पे सब लोग घर में ही होते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द हाउस. देन इट इज मोर डिप्रेसिंग. देयर इज नो प्राइवेसी एक्चुअली इन द हाउस. फिर एंड यंगस्टर्स वहां पे अभी ड्रग्स का इतना ज्यादा हो गया है. ग्रोसरी शॉप में भी यू विल फाइंड ड्रग्स. Okay. यू कैन गेट ड्रग्स एनीवेयर. ऐसा हो गया है. तो छोटे छोटे बच्चे एडिक्टेड हो गए वहां पे. एंड parents, they don't have knowledge, so they don't know what their kids are doing. And एडिक्ट होने के बाद जो उन लोग का बिहेवियर होता है, जो बहुत लेट हो चुका रहता है, उसके बाद पेरेंट्स को पता चलता है ओ ही और शी इज एडिक्टेड. और वहां पे रिहैब सेंटर भी जब तक वो पर्सन नहीं बोलेगा ना कि मुझे आपके साथ आना है, दे विल नॉट टेक यू. इवन दो द मदर इज टेलिंग और फादर इज टेलिंग कि मेरा बच्चा इज एडिक्टेड, यू जस्ट टेक इन रिहैब सेंटर. नहीं ले जाएंगे जब तक वो बच्चा नहीं बोलेगा. कल्चर बहुत गंदा हो रहा है वहां पे. एंड दैट्स द रीजन इंडिया ज्यादा अच्छा है. इंडिया में ना वो एक रिस्पेक्ट होती है. इवन इफ यू आर स्मोकिंग एंड इफ यू सी एनी एल्डर पीपल छुपा देते तो हो. छुपा देंगे. है ना. तो वो संस्कार इंडिया में ही है, वो आपको अब्रॉड नहीं मिलेगा. अब्रॉड सिर्फ पैसे मिलेंगे. संस्कार से ज्यादा वो इंस्टिंक्ट है छुपाने वाली. डर के मारे, है ना. कुछ भी पी रहे भी होंगे, कुछ हार्ड ड्रिंक्स भी ले लिया, तो ऐसे. So you have gone through so many things in your life. When you were in UK, after you decided to come back to India with your husband and daughter, went through so many personal problems. Video YouTube पर भी viral हुआ था. So how did you cope up with it? What changes did you make in your life? How have you come above it? क्योंकि society does not care. Society is very hard. वो हमको बुरा ही फील करवाती है, वो हमको नीचे ही डुबोने की कोशिश करती है. So what did you do? इंडिया आने के बाद, इंडिया was our choice to come India forever. And here we started a business. It was a supermarket business. So 2016 में we started. 2017 में I got separated. Okay, I'm not divorced yet. I'm just separated. तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ. एंड 2018 में वो वीडियो वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद केसेस हुए एंड डिवोर्स केसेस भी हुए हैं. द जर्नी दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ, आई कैन टेल यू. क्योंकि एक औरत ना कुछ भी सहन करेगी. ओके, she can't see anyone with husband. Another thing is she can't bear defamation, you know. वो अपना किसी ने अगर उसके चरित्र पे सवाल उठाया और किसी ने कुछ बोल दिया ना, she will not bear that. My story is like it just twisted. जो हुआ था वो तो नहीं आया पिक्चर में, जो नहीं हुआ वो आ गया पिक्चर में. So everything was blame on me. Okay. और जैसे मेरे पे ब्लेम हुआ ना, नॉट अ डे इवन. एंड आई टोल्ड यू लाइक माई फैमिली, मेरे पापा को सब लोग जानते हैं. सो एवरीबडी वाज लाइक, क्या हुआ, आपकी बेटी घर छोड़ के आ गई, आपकी बेटी घर छोड़ के आ गई. तो 2 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि बाहर क्या बात हो रही है ना. फिर लेटर ऑन जब पता चला कि एवरीथिंग वाज ऑन मी, I am being blamed for my character. And in a few days, I mean, कुछ भी नहीं हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है. ठीक है, आप जब कुछ बोलते हो, आप क्लेम करते हो कि ये हुआ है, so you should have the strong proof also, no? But then for the girl, female, you don't need a proof. Okay? Society don't need a proof for a girl. नहीं देखा है फिर भी बोलेंगे वो ऐसी है. अच्छी तैयार हो वो ऐसी है. ठीक है, अगर वो होशियार हो तो दे विल से दैट चालू है या बेच के खा जाएगी, है ना. एंड इफ अ मैन इज डूइंग समथिंग, इसने छोड़ दिया ना इसलिए वो किसी और के साथ होगा.
वो ऐसी है ना इसलिए इसने ऐसा किया है, वो हैरान कर रही है ना इसलिए इसने ड्रिंक चालू कर दी. So a man's behavior, however it is, हमेशा excuses दिए जाते हैं उसके लिए, and the woman is blamed eventually. Always it is woman who is blamed. And कौन blame करता है woman को? It is sometimes woman only who blames woman. Mostly it is women only. Okay? And और है ना लोगों को ना बहुत मजा आती है when they get a topic. मेरे साथ भी यही हुआ. It went on. I didn't sleep for 2 years. You know, that thought was killing me inside कि जब कुछ हुआ था और मैं ना ऐसे अच्छी वाली बहू, अच्छी वाली बीवी, अच्छी वाली मम्मी बन के रहूं ताकि बैक ऑफ जो हो रहा है होने दो, लेकिन सोसाइटी के लिए मैं अच्छी ही रहूंगी और मेरा फैमिली भी अच्छा ही दिखना चाहिए, है ना. तो वो फर्स्ट थॉट कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो फर्स्ट थॉट आ जाता है कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मेरी बच्ची का क्या, अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे. बट देन छोड़ा तो कभी नहीं था मैंने, बट देन जब बात कैरेक्टर पे आ जाती है, so that was my breaking point. Yes, I was being blamed for everything. I was depressed. There was time when मैं functions में जाती थी ना तो लोग बात नहीं करते थे, तो मैं ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए थिया के साथ खेलती थी या ऐसे किसी को देखती भी नहीं थी. It was my friend's wedding where I went and she said you have to come. वो UK से आई थी and we are childhood friends, it's a best friends ऐसे. She said you have to come. I said okay. जब वो शादी में मैं गई, I saw टंडन कम्युनिटी बहुत छोटा है ना, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. मैं वहाँ बैठी हूँ फॉर एन आवर, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे वो हंसी रखनी थी मेरे इस पे फेस पे कि ठीक है. धीरे धीरे ये चीज होने लगी. आई यूज्ड टू गो होम एंड आई यूज्ड टू लाइक क्राई कि मैंने क्या किया है, एंड मैं एक एक को तो नहीं समझाने जाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, राइट. एंड देयर वाज नोबडी विद मी एंड इवन माय पेरेंट्स they were there but they were not actually there, क्योंकि वो हो जाता ना, शादी हो जाती है फिर कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना. आप ना वो तो वैसा होगा, धीरे धीरे वो वापस तेरी लाइफ में आ जाएगा, तो हाँ मतलब एक्सेप्ट कर लेना वो चीज को, क्योंकि थिया है ना, बच्ची है ना. सो दिस वॉज एवरीबडीज थॉट ड्यूरिंग दैट टाइम. तो थिया है बट मैं ही ठीक नहीं हूं, तो थिया कहाँ से ठीक होगी ना. तो आई थॉट के देयर वाज टाइम व्हेन आई ट्राई टू कमिट, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो थॉट्स ना, इट वाज किलिंग मी. सब कुछ भूल गई थी जो भी हुआ था मेरे साथ, लेकिन वो जो कैरेक्टर वाला पार्ट था ना, मैं आज भी नहीं भूली हूँ. And I'll never forget. मुझे ऐसा लगा कि I want to end up. But then during that time, my father came to me. And he's like, जब तेरी गलती नहीं है, तो तुझे क्यों छुटकारा देना है उनको? They'll be free if you do something like that. So like 4 hours, 5 hours, I was mum. मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी. During that time, मेरे साथ ना मेरी एक friend थी, कल्पना शाह. She was always there with me. And her family was the only one who used to console me, pamper me, जो मुझे उस टाइम पे चाहिए था. And there was one of my family auntie. Her name is Chanchal. She was always there. She used to tell my father कि आप लोग रेनू के बारे में सोचो ना, आप थिया के बारे में कैसे सोच सकते हो ना. आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो. डोंट से दैट ये सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे और वो वापस आ जाएगा. हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो वापस आ जाएगा. एंड देयर वर पीपल हु टोल्ड मी दैट केस चालू है तो यू साइन डिवोर्स, क्योंकि वो तो साल भर तक चलता रहेगा. बट आई सेड दैट रीजन क्या है टू साइन डिवोर्स? गिव मी अ जेन्युइन रीजन. इवन टू माई हस्बैंड आई सेड आई विल साइन डिवोर्स फॉर श्योर, only if you beg me sorry, okay, for whatever you have done,
और जिन जिन को कुछ जो भी बात फैलाई थी, यू हैव टू अपोलोजाइज, यू बी इट ऑन वीडियो, बी इट ऑन लेटर, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा. एंड दैट इज द डे आई कैन साइन डिवोर्स. मैंने मतलब इट वॉज लाइक अर्निंग इज वेरी इजी, बट अर्निंग दैट सेम नेम जिसका कैरेक्टर खराब किया जाता है ना, उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक लेडी को. सो वन ऑफ माई अंकल ही केम टू मी एंड ही सेड के बेटा यू नो यू शुड डिवोर्स, क्योंकि आपको भी तो शादी करनी है ना, आप छोटे हो, आपको भी शादी करनी है, आप तो अच्छे दिखते हो तो आपको कोई भी मिल जाएगा. तो मैंने अंकल को यही कहा कि ठीक है, मैं शादी करने को रेडी हूँ. इफ यू गेट एनी वन बॉय फ्रॉम आवर कम्युनिटी हु इज सिंगल, जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसका बच्चा नहीं हो, ओके, आप ले आओ. ही वॉज मॉम, बिकॉज नोबडी विल गेट रेडी ना शादी करने के लिए. इसके साथ तो ऐसा हुआ था, इसकी एक 10 साल की बच्ची है. शादी डिवोर्स करना फायदा एक ही इंसान को होगा और किसी को नहीं होगा. एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट ट्रॉमा विच आई वेंट थ्रू. ओके, एंड विद दैट ट्रॉमा प्लस थिया मेरे साथ है, सो आई हैव टू स्माइल ऑल द टाइम उसके सामने दैट आई एम हैप्पी मम्मी, यू नो, इफ शी सी मी हैप्पी शी इज गोना बी हैप्पी. तो मैं हमेशा ऐसे उसके सामने ना खुशी रहती थी. So, how many years has it been since you have been raising your daughter alone? It's been 7 years. So, how has it been? There must have been challenges. It was. सबसे बुरा तब लगता है जब थिया को कोई बोल दे कि तेरे पापा कहाँ हैं. Shielding your child from all the traumas. Yes, and she don't have answer, right? And you know, इतने साल में she never asked me कि why we are here, and whenever she asked me तो मैंने यही बोला वेकेशन आया मामा के घर. ऐसे अभी तो बड़ी हो चुकी है और उसको पता चल रहा है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो सबकी बातें भी सुनती होगी, अराउंड रहती है तो वो सुनती होगी. Girls are anyways more perceptive. She is, हाँ, वो बहुत ज्यादा मैच्योर है. और जब मैंने इसकी 10th बर्थडे पे हम लोग ने जब बात की, ये सब हुआ था मेरे साथ, तो what she wants, is she happy with me, am I lacking anywhere, ये सब मुझे जानना था. because mother, everybody is not perfect, है ना. एंड मेरे लिए वो स्पेशल है क्योंकि मुझे दोनों का उसके साथ एज अ मदर एंड फादर बोथ. तो मैंने उसको सारा चीज पूछा करा, एंड शी ओनली टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स विच आई वाज शॉक्ड. शी नोज सो मेनी थिंग्स एंड शी गिव मी स्ट्रेंथ अगेन कि मैं हूँ, लेट मी रीच, मुझे कॉलेज जाने दो, फिर आप देखो. यू नो, वो बच्ची है बट उसको पता है कि बड़ी होना पड़ेगा कुछ करने के लिए. अभी मैं बहुत छोटी हूँ. एंड थिया के स्कूल में जाती हूँ, पेरेंट मीटिंग होता है, एवरीबडी सी मम्मी पापा टुगेदर. लेकिन थिया के लिए ना, शी हैज नेवर मेड मी फील के उसको पापा की जरूरत है, या शी मेड मी फील के मैं अकेली हूँ ऐसे. तो शी इज कोऑपरेटिंग विथ मी सो वेल. एंड मैं नहीं मानती कि यू नो कि हस्बैंड होना चाहिए तो ही वो खुश रहेगी, बट वो मेरे पापा के साथ भी वो बहुत ज्यादा खुश है. He gives everything to her, and the way they keep her, प्यार देते हैं. नाना नानी का प्यार तो आपको पता ही है. They will, you know, तो पापा जब घर में आते हैं तो फर्स्ट थिंग इज थिया. शी नोज दैट. तो उसको कभी ऐसा एब्सेंट फील तो नहीं करवाया हम लोग ने. और आई हैड स्पॉइल्ड हर विद गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग. फिर आई रियलाइज के उसकी नीड्स बढ़ रही है. देन आई स्टार्टेड विद दैट मनी वैल्यू, टीचिंग हर मनी वैल्यू. एंड आई टोल्ड हर दिस माई वर्क, मैं इतना ही करूंगी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो किधर शॉपिंग गए तो इफ शी सी एनीथिंग एंड शी चुपके से बताएगी जैसे कोई नहीं दिख रहा है, ये प्राइस, इज इट ओके, एंड इफ आई से तो शी विल नॉट क्राई या जिद नहीं करेगी. वो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, कभी नहीं जिद करेगी. अभी Amazon पे भी देखेगी कि ये चीज है तो फर्स्ट शी विल सी द प्राइस, एंड इफ आई एम ओके देन इवन इफ शी गो टू एनी शॉप
वो देखेगी एक चॉकलेट का पैकेट है और वो चॉकलेट के पैकेट में 5 चॉकलेट्स है, ओके, एंड उसने बोल दिया 50 रुपीज का, शी विल बी लाइक 50 रुपीज में बस 5, तो वो नहीं लेगी इवन दो इफ इट इज फेवरेट. तो शी नोज दैट वैल्यू नाउ and I'm very glad that she has learned. For a 10-year-old Yes. child, it is a very good thing that she really has value for money. And मेरे हिसाब से जैसे मैं थिया को अकेली ही बड़ा कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि वो कभी ऐसा ना फील करे कि मेरी मम्मी मेरे लिए ये नहीं ला दे रही है. And there are kids where they have good gadgets or fancy compass box, है ना. So she asks sometime, मम्मी उसके पास ना ये है, तो I tell her I'll definitely get for you, and but you just see how much does it work for, you know. वो कंपास बॉक्स लाके दे दूंगी और मैं लाई भी हूँ just to test her and see. So वो मैंने ना जब वो 8 साल की थी ना तब से मैंने चालू किया. जो मांग रही हूँ मैं दे तो रही हूँ, पर उसको बता रही हूँ कि ये चीज कैसे काम आती है, कब तक काम आएगी. In a society where everything a woman does, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही है, questions उठते ही हैं. How do you want to empower your daughter? How do you want to raise her? Something that you want to teach her कि वो जो करना चाहे वो रुके ना. आप क्या उसको ऐसे सिखाना चाहो? I think I am the only example for her right now. Okay, I have not stopped anywhere. And she see me the same way. I think she will do it. जैसे कि अभी मैं देखती है मम्मी काम पे जाती है and मैं मेरे मम्मी के घर पे रहती हूँ. So it is mandatory कि बाहर कितना भी काम कर लो लेकिन किचन में थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है. And for me, मम्मी का घर है लेकिन it is like a guest house, and every woman feels that after marriage. बचपन से सिखाते हैं पराया धर्म. मैं तो मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसे मजाक भी करती हूँ. पापा if he asks me now कि तू इतनी रात को हॉस्पिटल गई थी, तो ये तो क्या है, अभी तो पराया धन हूँ, अभी क्या है. तो वो चीज होती है. तो मेरी थिया को ना मम्मी एक बार ऐसा बोल दी कि थिया अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी ना तो नानी की तरह तुझे काम करना पड़ेगा घर में. तो थिया ने बोल दिया मेरी मम्मी पढ़ाई करके भी घर का काम कर रही है और बाहर का काम भी कर रही है, तो मैं शायद पढ़ूं ही नहीं और घर का काम करूं. This is what she said, okay? I said no, but then yes, actually वो देखती है ना मुझे, मैं उसके साथ सब कुछ करती हूँ. I play with her, I go movie with her. I think I have played all roles with her. As a friend, मैं स्पेशली उसको हॉलीडे लेके जाती हूँ. We too go for holiday, okay? We spend our time. She has seen me with my friends also. I have my me time, which is very very important. अगर मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगी ना तो मैं जानूंगी ही नहीं कि मैं क्या हूँ और क्या करना चाहती हूँ. You also got a new degree also, right? Yes, because इतने सारे केसेस थे कोर्ट में, तो मैं 2018 से कोर्ट जा रही हूँ. So स्टार्टिंग में तो बहुत लो फील करती थी वहां पे जाके. एवरी मंथ में 3-4 बार जाओ एंड बैठो वहां पे 2 घंटे. So what I was thinking is, why should I waste my time? वो 2 घंटे I started taking it positive कि अब मैं ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा. I know it is very difficult ये ईयर में करना, लेकिन देन आई थॉट चलो मुझे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरे पास डिग्री भी आ जाएगी. तो आई थॉट ऑफ डूइंग LLB then, and I just pass out my LLB. Congratulations. Thank you. So it's a very big thing that taking care of your daughter, running your own business, and getting a degree, a law degree along with it, is quite a big deal. So any message you have for the girls of Daman or for the women out there to empower them? I just want to say that don't think about society, okay, what they will say, because they don't know what they are doing, okay. And I want to say that be strong, because at the end it is your life, okay. It is your karma and you have to do what you have to do here and go. Though it is family or people around,
what is right for you, you choose that first. If you are doing something good, best, आप करो, आप रोको मत अपने आप को, आप कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, राइट? तो आई थिंक ऑल वुमेन शुड नॉट बी शाई और शेम ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. एंड फेमिनिज्म की बात नहीं है, लेकिन हमको वो चीज ना कभी कभी करनी पड़ती है. जैसे कि हम वुमेन्स को लगता है कि घर के बाहर जाऊंगी, काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर किसी मेल से बात कर ली तो लोग क्या कहेंगे. बट दैट इज लाइक अ फुल स्टॉप. गेट आउट ऑफ द माइंड. क्योंकि relationships, there are many kind of relationship. There is not only one relationship in the world. आज के जमाने में people think there is only one relationship between men and women. No, there is many relationship. Okay, between staff and owner. Okay, client and owner, dealers and owner. Though it is female or male, even though people judge, try to ignore it. Ignorance is the best thing you can do, and keep that smile on your face. Let people think, why are you so happy? So that is the best thing I can do. So I think we can end on this note that you have to do what is best for you. We have to do what is best for us. So Because खाना खिलाने के लिए तो हमको ही मेहनत करो. करनी पड़ेगी ना. So thank you so much for being a part of this Thank you so episode. much for inviting me. It was amazing to listen to what you went through, how you started, and where you have come, how far you have come along. So thank you. Thank you. Thank you.